Yeah, hello everyone. We'll continue with chemical kinetics. Question number 11. We were doing numericals. Continue with numericals. Just read the question and write down given. Now, rate of reaction A plus B gives you product. The rate of reaction is 3.6 into 10 raised to minus 2 molar per second. When concentration of A is 0.2 molar and concentration of B is 0.1 molar. Calculate K, means you have to calculate rate constant. Calculate rate constant if the reaction is second order in A and first order in B. Now indirectly they have given you rate law. If the reaction is second order in A and first order in B. Now read the question carefully and tell me what all is given out here. So X is 2 and Y is 1. X is 2, Y is 1, that is given. What else? Concentration of A and concentration of B. Concentration of A and B is given. What is 3.6 into 10 raised to minus 2? Rate. Rate, yeah, correct. So what all they have given us is, they have given us rate A, they have given us B, and we have to calculate K. Now this, as the reaction is second order in A and first order in B, so X and Y also they have given. So we can make rate law out of it. Rate law, K is equals to A raised to 2 and B raised to 1. Now rest everything is given, just substitute and get the answer and let me know what is value of K. Come on, substitute on your own. Rate दिया है, A दिया है, B दिया है, K find करना है. Sir, Yeah. K equal to 9 into 10 raised to minus 2. Huh. K is only 9, I think. So 1 second, I will just check. 3.6 into 10 raised to minus 2 here. This is 0.2 square and 0.1. So this will become 3.6 into 10 raised to minus 2. Now when you remove decimal, I think all the decimals will get cancelled. So K will become only 9. Okay. What is unit of K? Unit of K? Mole raised to minus 2, second raised to minus 10. Yeah, mole raised to minus 2, second raised to minus 1, or mole raised to minus 2, dm raised to 6 and second inverse. Don't say mole raised to minus, say molar raised to minus 2. मोल पर डीएम क्यूब नहीं लिखना है तो मोलार पूरा एम कैपिटल एम लिखना पड़ेगा. मोलार रेस टू माइनस 2 पर सेकेंड या तो मोल रेस टू माइनस 2 डीएम रेस टू 6 पर सेकेंड, ऐसे लिखना पड़ेगा. ओके, एवरीबॉडी गॉट द सम ना? We'll go for the next one now. 11th one. Now we'll go for 12th sum. See, now in 12th one, A plus 2B gives you C plus 2B. The rate of this reaction is given when concentration of A and B both is 0.3. Now what is overall order of reaction if the rate constant for the reaction is already given to you? Come on, now what all is given and what are we supposed to calculate? क्या क्या दिया है यहाँ पर? So rate is given. हाँ, rate is how much? 6 into 10 raised to minus 4. Okay, then K is given. A and B 2 both are into given. 10 A is to 0.3, B is also 0.3. Okay, then
K is given. K is given 2 into 10 raised to minus 3 per second. Now what are we supposed to find? x plus y. X plus x plus y, ओवरऑल ऑर्डर फाइंड करना है x plus y. अभी कोई बिना सॉल्व किए ये सम को बिना सॉल्व किए, लुकिंग एट द क्वेश्चन, कैन यू एनीबडी टेल मी व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? सॉल्व नहीं करना है, खाली देख के बता सकते हो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा इधर? Y. So 1. y y1, इसका ऑर्डर 1 क्यों है? So because A and B are equal. नो, नथिंग लाइक दैट. कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होने से पावर इक्वल थोड़ी हो जाता है. और कोई रीजन है बताओ? 1 करेक्ट है, पर क्यों 1? नो वन. कम ऑन, नीट जेई में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कुछ दिया हुआ है, सॉल्व So नहीं if कर. we हाँ, if we just divide k by r, that is rate, we'll get 3, and 10 is to minus 3. नो 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 we'll नो get 10 नो, is to कुछ नहीं 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 नहीं, oh सिर्फ really, oh really. ओरली नहीं, सिंपल सा लॉजिक है, खाली क्वेश्चन रीड करो और बताओ ऑर्डर 1 क्यों है. अभी तो 1 है वो भी मालूम है, अब तो इतना इजी हो गया है. कोई भी नहीं है. ठीक है, आई टेल यू ऑल. यूनिट ऑफ के पर सेकेंड सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में ही आएगा. एनीबडी फॉलोड? के की यूनिट दे दी है पर सेकेंड, और पर सेकेंड यूनिट कब आती है? फर्स्ट ऑर्डर में. जीरो ऑर्डर में है मोल पर लीटर पर सेकेंड या तो मोलार पर सेकेंड. फर्स्ट ऑर्डर में खाली पर सेकेंड है. सेकेंड ऑर्डर में मोलार रेज टू -1 पर सेकेंड. ओके, एंड थर्ड ऑर्डर में मोलार रेज टू -2 पर सेकेंड है. तो के की यूनिट देखो, सिर्फ के की यूनिट पर सेकेंड दी है, मतलब ऑब्वियसली ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तभी के की यूनिट पर सेकेंड आ गई यहाँ पर. इज इट क्लियर? नेक्स्ट टाइम ध्यान देना है इस पे. देखो अभी इसको सॉल्व कैसे करोगे? रेट लॉ है, रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू एक्स बी रेज टू वाई. ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करो और x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करो. कम ऑन, 0.3 0.3 सेम है, तो पावर हो जाएगा x प्लस वाई. एंड टेल मी हाउ विल यू गेट x प्लस वाई 1? कंप्लीट दिस. ठीक है, समझ आया? Okay, we'll go for the next slide. Okay, come on. The rate
of the first order reaction is 5.4 into 10 raised to minus 6 when square bracket A is 0.3 molar. Calculate the rate constant of the reaction. हाँ given लिखो पहले given. कौन गिवन लिखो, रेट दिया हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट ए दिया हुआ है और के फाइंड करना है. इसका रेट लॉ क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी रेट लॉ? Rate is equal to K Three. open bracket A raised to X. हाँ a raised to 1 क्योंकि 1 है ना, फर्स्ट ऑर्डर दे दिया है. देखो यहाँ पे the rate of first order given already. So rate law will become rate is equals to K A raised to 1. बस इतना सिंपल है. रेट दे दिया है 5.4, K फाइंड करना है A 0.3. What will be unit? Second in What will be unit of K? So second raised to minus हाँ 1. second raised to minus 1. 1.8 into 10 raised to minus 5 per second. क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है दिया हुआ है. हाँ okay, next one. सम नंबर 14. ये फिर से वो दो सिचुएशन दी हुई है उसके हिसाब से करना है. यहाँ पे पहले दिया है if B is doubled at constant A the rate of reaction doubles. और फिर सेकेंड कंडीशन दी हुई है अगर A को ट्रिपल किया B को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 6. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट एंड ओवरऑल ऑर्डर. ठीक है, तो ये सब पूछा है. अभी हम कंसिडर करेंगे रेट द रेट लॉ बी. रेट लॉ बी A रेज टू X एंड B रेज टू Y. अभी हम पहला सिचुएशन लेंगे खाली. when B is double at constant A. खाली ये पार्ट लो. चलो अभी आगे खुद से सॉल्व करो क्या होगा. when B is double at constant A the rate of reaction becomes double. ये आगे कर चुके हैं सेम सम. if B is double at constant A the rate of reaction doubles. मतलब यहाँ पे क्या करना है, B को डबल करना है, A को फिक्स रखना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा. See like this. यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया ना, when B is doubled है,
when b is double at constant a, मतलब a को constant करना है, b को डबल करना है। यहाँ पर रॉन्ग किया है मैंने ये। यहाँ पे अभी r1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली a कैंसिल होना चाहिए था अभी। ओके a कैंसिल हो जाएगा। अभी y इज इक्वल्स टू, तुमको यहाँ पे मिलेगा y इज इक्वल्स टू 1। एक्चुअली x1 नहीं है, y1 है, क्योंकि a कैंसिल हो रहा है। ओके डू द करेक्शन। हाँ यहाँ पे x की जगह पे y आएगा। यहाँ पे a पहले कैंसिल कर दो। यहाँ पे 2 रेज टू x b रेज टू x, यहाँ पे b रेज टू x, फिर 2 रेज टू y इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर y इज 1। X and Y is 1. हाँ क्योंकि ना मैंने यहाँ पे गलत कर दिया ना, when b is doubled तो b को डबल करना है एक ही जगह पे, है ना। So final answer is X and Y is 1. हाँ फाइनल आंसर x and y, x is 1, y is also 1। फाइनल आंसर बोथ आर 1। ये y1 सबको मिला। Okay, I'll go to the next slide. देखो अभी सेकेंड पार्ट में दिया है when A is tripled and B is doubled, the rate of reaction increases by factor 6। अभी यहाँ पे मैंने गलती से A को तो 1 ले लिया, मतलब X को 1 ले लिया है। तुम चाहिए तो Y को 1 लेके करो, आंसर सेम आएगा। Y1 और X अननोन कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा A को ट्रिपल किया, B को डबल किया तो नया रेट हो जाएगा 6 टाइम्स। अब यहाँ पे R1 कैंसिल, K कैंसिल, और ये आगे ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये 3 रेज टू y करना पड़ेगा, A रेज टू y, 2 रेज टू 1 और B रेज टू 1 कर देना पड़ेगा अगर तुम y को 1 ले रहे हो तो, है ना। थोड़ा करेक्शन करके करो बराबर से। ये A1 कैंसिल, B कैंसिल। अब ये 3 नीचे डिवाइड कर दो तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे y भी 1 आएगा, वहां पे x भी 1 आया, y भी 1 आया। अब यहाँ पे ना पूछा है, देखो क्वेश्चन में, व्हाट इज ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट। यहाँ पे लिखना पड़ेगा वर्ड्स में, द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A is 1, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B is 1 and overall order is 2। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A is 1, order with respect to B is 1 and overall order is 2। तो वो लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, लिखो। Okay, order with respect to A is 1, order with respect to B is also 1 and overall order is 2।
Okay, I'll change the slide. Okay. Now see, we have to do integrated rate equation for the first order reaction. अभी उसको समझने के लिए पहले कुछ formulas है integration के. I hope you all have done little bit of integration in your maths. Anybody know what is integration of dx? किसी को पता है what is integration of dx? Yeah? X. हाँ, x. Integration of dx, answer is x. What is integration of dx upon x? So log Yeah, correct. Say log. X. Log X. हाँ, log x to the base e. Okay. Integration of dx upon x is log of x to the base e. Okay. अब ये log x to the base e को log x to the base 10 में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं? हम लोग ने थर्मोडायनामिक्स में किया है ये log x to the base e को या 2.303 से मल्टीप्लाई. हाँ, वेरी गुड. 2.303 से मल्टीप्लाई करो तो log to the base e log to the base 10 में कन्वर्ट हो जाता है. So we have to multiply with this fixed value. So integration of dx is only x. Integration of dx upon x is log of x to the base e. Log x to the base e को log x to the base 10 में कन्वर्ट करना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करो. यहाँ पे इंटीग्रेशन में हम प्लस c लिखते हैं, हाँ, और यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है बिकॉज विल बी डूइंग इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स डेफिनेट. ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है. नाउ माइनस लॉग ऑफ x अपॉन y, ये माइनस है. अगर हम लॉग में रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये माइनस प्लस हो जाता है. सो माइनस लॉग ऑफ x अपॉन y टू द बेस e इज प्लस लॉग ऑफ y अपॉन x टू द बेस e. मतलब माइनस निकालना हो तो लॉग में रेसिप्रोकल कर दो. रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाता है और प्लस है तो माइनस हो जाएगा. इज इट क्लियर? तो ये समझा सारे फॉर्मूलेस. So we'll be using all these formulas for one small derivation. I'll start with the derivation. पहले एक बार रिवाइज कर लो. Integration of dx x होता है. Integration of dx upon x is log x to the base e. Log x to the base e equals to 2.303 log x to the base 10 minus log of x upon y is plus log of y by x. Okay. Now see, we'll do one derivation. Derive an integrated rate equation for first order reaction. Integrated rate expression for first order reaction. अभी consider first order reaction. A gives you product. अभी इसका रेट लॉ क्या हो जाता है? रेट इज प्रोपोर्शनल टू a raised to 1. प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो रेट कांस्टेंट मिलता है k. हम रेट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? रेट इज व्हाट? dA by dt. तो रेट की जगह पे मैंने लिखा dA by dt क्योंकि रिएक्टेंट है तो इसलिए माइनस इक्वल्स टू KA. अभी इसको हम रीअरेंज कर देते हैं. A को नीचे ले लेते हैं और dt को ऊपर ले लेते हैं. So we get like that dA by A equals to K dt. तो यहां तक समझा? शुरू करना है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. वी से कंसीडर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A फॉर्म्स प्रोडक्ट. अभी फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a raised to 1. प्रोपोर्शनलिटी हटाओ तो कांस्टेंट मिलता है k. रेट कांस्टेंट. रेट कैन बी रिटन एज माइनस dA by dt इक्वल्स टू KA. A को नीचे ले लिया, dt को ऊपर ले लिया. अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं. जब टाइम 0 है तो इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन A 0 है, पर थोड़े देर के बाद
let the time be t, तो concentration left is 80. मैंने जैसे बताया था ना, एक एक्सप्रेशन a to b कन्वर्ट हो रहा है. अभी a इनिशियली 100 है, 2-3 सेकेंड के बाद 80 हो गया ऐसे. तो जब शुरू में हमने लिया तो ये a0 था, पर थोड़ी देर के बाद अभी इतना बच गया. ओके, अब ये इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करना है पर लिमिट के साथ. सो हियर वी राइट इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 बाय पुटिंग अबव लिमिट्स. अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो dA by a, ये इंटीग्रेशन ऑफ dA by a है, पर लिमिट डालना है a0 से 80. यहाँ पे लिमिट पुट करना है, ये इंटीग्रेशन की साइन है, नीचे a0 ऊपर 80. यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन होगा और लिमिट है 0 से t. कम ऑन नाउ टेल मी व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dA by a. What will be integration of dA by a? Yes. Integration of log a to the base e. So integration of dA by a is log a to the base e, and integration of only dt is t. और यहाँ पे मैंने लिमिट लिखा है a0 से a t और यहाँ पे 0 से t. अभी एक ही जगह पे ये दोनों लिमिट डालेंगे, फाइनल और इनिशियल. यहाँ पे t की जगह पे ये दोनों लिमिट डालेंगे. तो जब लिमिट पुट करोगे तो एक ही जगह पे 80 log of 80 माइनस log of a0, और यहाँ पे हो जाएगा log of k इंटू टी माइनस 0. अभी देखो ये दोनों log है, यहाँ पे बीच में माइनस है, तो हम इसको डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो वी कैन राइट log 80 by log a0. ये माइनस बाहर का एज इट इज रहेगा, ये 80 ऊपर आ जाएगा और a0 नीचे आ जाएगा. t minus 0 is only t, तो we get kt. अब ये माइनस निकालना है तो क्या करोगे? If you want to remove this minus, what you will do? Reciprocal. रेसिप्रोकल करेंगे. तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो ये a0 by 80 हो गया. अभी log to the base e को log to the base 10 में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 2.30 to multiply. Okay, so we'll multiply k is equals to 2.303 और ये वाला t नीचे ले लिया, log of a0 by 80 to the base 10. तो ये फॉर्मूला है हम लोग. ठीक है, तो ये डेरिवेशन है. आई विल रिपीट दिस पार्ट वंस अगेन, पे प्रॉपर अटेंशन. Integrated rate equation for first order reaction. Consider a first order reaction. A gives you product. अब यहाँ पे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a raised to 1. रेट की जगह पे हम लिख सकते हैं dA by dt, तो माइनस dA by dt. माइनस साइन क्यों? रिएक्टेंट है इसलिए. k a raised to 1. अभी a को नीचे ले लो, dt को ऊपर ले लो, तो ऐसे हो गया. ओके, अभी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि जब टाइम 0 है तो कॉन्सेंट्रेशन a0 है, और जब टाइम t हो जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा? 80. सो दिस इज कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट. अभी हम इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन 1 को बाय पुटिंग दिस लिमिट्स. तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया लिमिट के साथ. इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 बाय पुटिंग अबव लिमिट्स. ये इंटीग्रेशन ऑफ dA by a है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dt किया. यहाँ पे लिमिट a0 से 80 और यहाँ पे लिमिट 0 से t. इंटीग्रेशन ऑफ dA by a होता है log a to the base e, और ये लिमिट है. इंटीग्रेशन ऑफ dt इज ओनली t और लिमिट है t से 0. अभी लिमिट पुट करेंगे तो 80 माइनस a0 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे t माइनस 0 आ जाएगा. क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हम इसको डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये t माइनस 0 खाली t बचेगा. अभी ये नेगेटिव निकालना है इसलिए हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं. सो वी रेसिप्रोकल इट, तो माइनस विल बिकम प्लस. अभी ये log टू द बेस e को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये t नीचे लिख दिया. तो ये डेरिवेशन है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का एक्सप्रेशन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए. हम इसको दूसरे फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं. अब इसका दूसरा फॉर्म ऐसा है, टाइम 0 है तो कॉन्सेंट्रेशन a था,
जब टाइम t है तो कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट इज a माइनस एक्स। तो यहाँ पे a0 की जगह पे क्या लिखोगे, स्मॉल a, और at की जगह पे क्या लिखोगे, a माइनस एक्स। तो ये फॉर्म में भी हम उसको लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। तो ये इसका दूसरा फॉर्म है। पर डेरिवेशन जब पूछा तो यहीं तक करना है, ये लिखना नहीं है, ये खाली एमसीक्यू वगैरह में आएगा तो यू हैव टू रिमेम्बर। फिर इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी एक्सप्रेस करते हैं, ये वाला लॉगरिदमिक फॉर्म है, इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो a0 के फॉर्म में लिखोगे तो e रेज टू kt, मतलब ये वाला एक्चुअली ये जो टर्म है ना, ये लॉगरिदमिक फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, दिस वन। ये बेस ही रहेगा और जो आंसर है वो पावर हो जाएगा। तो a0 इक्वल्स टू 80 e रेज टू kt, ये एक फॉर्म है। अगर तुम 80 के फॉर्म में लिखोगे तो वो माइनस था ना, तो माइनस के फॉर्म में आ जाएगा, 80 इक्वल्स टू a0 e रेज टू माइनस kt। अभी ये सब एमसीक्यूज वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू में पूछते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, सो ये दोनों फॉर्म भी याद रखने हैं, खाली एमसीक्यूज वगैरह में काम आएगा। You have to write down this derivation, so I'm giving you some time to copy it down. Okay, so come on, copy from the beginning the entire derivation.